Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Gyan Manjari Modern School. Today, Standard 7 subject Social Science, Unit number 3, the Delhi Sultanate. In the previous video, we discussed about the case study, the Tughlaq dynasty. In the first Tughlaq king was Ghiyasuddin Tughlaq, and the next Muhammad bin Tughlaq. We discussed about the Muhammad bin Tughlaq in previous video. Today we discuss about the Firoz Shah Tughlaq. Today we discuss about the Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq. Time period was between 1351 to 1388 century. 1351 to 1888 सेंचुरी, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक। मतलब कि हमने पिछले वीडियो में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा था। आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे, जो उसका टाइम पीरियड था फिरोज शाह तुगलक का 1351 to 1388 century. In the first, Firoz Shah's main aim was to consolidate the kingdom. Firoz Shah's main aim was to consolidate the kingdom. मतलब कि फिरोज शाह का सबसे मेन अगर उसका कोई उद्देश्य हो तो वो था द कंसोलिडेट द किंगडम, मतलब कि अपने राज्य की बढ़ाई करना, मतलब कि इसका विस्तार बनाना। He thus undertook measures to reform the administration. मतलब कि उसने क्या किया? He thus undertook measures to reform the administration. मतलब कि he thus undertook measures to reform the administration. मतलब कि उसने अपने हाथ में लिया measures को, फिर से उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उसने जो ये कमांड है वो अपने हाथ में लिया। He built the city of Firozabad in Delhi. मतलब कि ये जो फिरोज शाह है उसने क्या बनवाया था? He built the city of Firozabad in Delhi. मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो फिरोजाबाद दिल्ली में बनवाया था। He built the city of Firozabad in Delhi.
he will nearly मतलब कि उसने जो है वो he will nearly 300 towns. मतलब कि ये जो फिरोज शाह तुगलक है उसने तकरीबन 300 टाउन्स मतलब कि 300 शहर जो है वो बनवाए थे टाउन्स एंड repaired old buildings मतलब कि उसने 300 शहर तो बनवाए पर साथ साथ में जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उसके भी रिपेयर करवाया। फिरोज शाह built 300 towns and repaired old buildings. He was a learned man and organized scholars like Brani and Shahmas a Siraj Afif. He was a learned man मतलब कि काफी knowledgeable person था। He was a learned man and patronized scholars like Barani and Shams a Siraj Afif मतलब कि वो पढ़ा लिखा तो था मतलब कि लर्न मैन था मतलब कि सब कुछ जानता था और पेट्रोनाइज स्कॉलर्स भी था। किसमें लाइक बरानी एंड शाम्स ए सिराज अफीफ both nobles and common people were happy during his reign मतलब कि ये जो नोबेल है बिरानी एंड शर्मस है सिराज अफीफ ये एविडेंस है मतलब कि ये जो प्रूफ है both nobles and common people were happy during his reign मतलब कि इसके राज्य में वो काफी लोग हैप्पी थे। His successors were unable to stop decline to the Tughlaq empire मतलब कि ये जो अब तुगलक का एम्पायर जो बढ़ने लगा था उसका साम्राज्य वो अब स्टॉप नहीं किया जा सकता था। His successors were unable to stop the decline of the Tughlaq empire मतलब कि उसे अब रोकना नामुमकिन था। So here is the Firoz Shah Tughlaq important point. You just write down in your book, then move forward. The next topic is we forget the first line here. Shams a Afif. Both nobles and common people were happy during his reign. मतलब कि उसकी डेथ जो है वो his death in 38th century lead to many rebellions मतलब कि उसकी मौत किस वजह से हुई। His death in 1388 मतलब कि 1388 में lead to many rebellions मतलब कि काफी नेतृत्व करने मतलब कि many rebellions का नेतृत्व करते करते उसकी मौत हो गई। His death in 1388 century lead to many rebellions. His successors were unable to stop the decline of the Tughlaq Empire. The next topic is here the release of Firoz Shah Kotla, New Delhi.
Here, the page number 36, you can easily see that the picture of the ruins of Firoz Shah Kotla, New Delhi. The next is administration in the Sultanate. The next topic is the Sultan. Okay, students, first of all, write down this topic and then move forward. Okay, student, I have written this, then I move forward. The next topic is administration in the Sultanate, Sultan. Administration in the Sultanate. The topic is the Sultan. So, I think, student, you have listened this word Sultan. So, we study about the topic, the Sultan. The Sultan was the Sultan was the most important person in the empire. Here, the Sultan was the most important person in the empire. मतलब कि ये जो सुल्तान है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये एम्पायर में। साम्राज्य मतलब कि ये जो साम्राज्य है उसमें सुल्तान सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर।
He had to be intelligent, enduring and resourceful to be an effective ruler. मतलब कि ये काफी ये जो सुल्तान है वो he had to be intelligent, enduring and resourceful to be an effective ruler. To be an effective रूलर। मतलब कि ये जो सुल्तान है वो काफी इंटेलिजेंट था, मतलब कि काफी होशियार था, समझदार था, और मतलब कि ये जो सुल्तान है he had to be intelligent, मतलब कि काफी समझदार है, enduring and resourceful to be an effective ruler, मतलब कि काफी अच्छा जो है वो राजा है, और resourceful to be an effective ruler. Then he had to protect the empire from outside attacks and maintain law and order. मतलब कि उसने दूसरे राज्य से, मतलब कि दूसरे राजाओं से बचाने के लिए, मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए he had to protect the empire, मतलब कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए protect the empire from outside attacks, from outside attacks and maintain law and order. Maintain law and order, मतलब कि उसने दूसरे, मतलब कि बाहर से जो अटैक होने वाला है उसे क्या किया, अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट किया, और अपने जो रूल है, अपना जो ऑर्डर है, अपना जो लॉ है, उसे क्या किया, मेंटेन रखा, ताकि बिगड़े भी नहीं और ज्यादा उस पे जो है वो दूसरों पे अत्याचार भी ना हो, उसने वो क्या रखा, मेंटेन रखा। मतलब कि ये जो सुल्तान है दूसरे राज्य से, मतलब कि दूसरे बाहर के अटैक से खुद अपने एम्पायर को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, और अपने जो लॉ है, अपना जो ऑर्डर है, उसे क्या किया, मेंटेन रखा, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। He was the Chief Justice as well as the Commander in Chief of the Army। मतलब कि ये जो सुल्तान है वो चीफ जस्टिस, मतलब कि काफी चुस्त आदमी था, मतलब कि जस्टिस के लिए, एज वेल एज द कमांडर इन चीफ, मतलब कि ये क्या था, तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, मतलब कि सेनापति जो, जिसे हम कहते हैं जो सेना का नेतृत्व करता है, उसे क्या कहते हैं, सेनापति। तो एज वेल एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। बलबन cemented the sultan's position as God's representative on earth। मतलब कि ये जो बलबन है उसने सुल्तान की जो जगह दिखाई गई है, पोजीशन जो दिखाई है, वो जैसे मानो कि धरती पे भगवान का अवतार हो, मतलब कि गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, मतलब कि जैसे भगवान के लिए जो पृथ्वी है वो कैसी है, मतलब कि ये जो अर्थ है, अर्थ का इन्वेंशन जो है वो गॉड ने किया है, तो उसके लिए पृथ्वी कितनी मायने रखती है। वैसे ही यहाँ पे बलबन ने जो सुल्तान की पोजीशन दिखाई है वो ऐसे ही दिखाई है, गॉड्स द रिप्रेजेंटेटिव
representative on earth. He introduced the customs of Saijada, lying on the ground as feast of the Sultan. मतलब कि ही कस्टम्स ऑफ सजीदा, मतलब कि उसने मूर्ति बनाई है, एंड वाज किसिंग द सुल्तान्स फीट. द सुल्तान हैड मेनी नोबल्स एंड ऑफिसर्स हु एडवाइज हिम एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स. मतलब कि ये जो सुल्तान ने काफी सारे जो नोबल्स है, नोबेल लिखी है, उससे वो दूसरे लोग जो है वो इससे एडवाइस लेने के लिए आते हैं. वो एडवाइज हिम एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, मतलब कि उसने ये जो ऑर्डर्स जो है वो कैरीड किए हैं. ये सारे जो है सुल्तान के बारे में लिखा गया है. द सुल्तान हैड मेनी नोबल्स एंड ऑफर्स हु एडवाइज्ड हिम एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स. मतलब कि ये जो राजा ने, मतलब कि ये नोबल्स में जो लिखा है वो चाहते कि उसे एडवाइस करे और ऑर्डर्स जो है वो निकाले. सो हियर इज द Sultan important topic. You just write down, then move forward the next, nobles and officials. So okay student, have you written this? Then now move forward to the next topic, nobles and officials. The next topic, nobles and officials. Nobles and officials. Here the definition is, what is nobles? Those who had important military, मतलब कि किसके पास जो है वो important, मतलब कि सबसे शक्तिशाली लश्कर है. Those who held important military and civilian force in the government were part of
part of the nobility, part of the nobility. So here, who is nobility? Those who held important military, मतलब कि जिसके पास अच्छी important military हो, and civilian sports हो in the government, मतलब कि अपने राज्य में, were part of the nobility, जिसे हम nobility कहते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लश्कर हो और civilian sports हो in the government में और were part of the nobility, इसे क्या कहते हैं? Nobility कहते हैं. The Sultan had to get their support and keep them in control, मतलब कि सुल्तान जो है वो उसे क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं. The sultans मतलब कि जो भी राजा हो, the sultan had to get their support and keep them in control. Keep them in control. मतलब कि सुल्तान जो है वो ये जो मिलिट्री को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं. उसमें जो है द हाई रैंकिंग, मतलब कि सबसे उच्च स्थान पे जो है वो कौन है? द हाई रैंकिंग नोबेल्स, मतलब कि सबसे जो नोबेल्स है हाई रैंकिंग में किसका नाम आता है? where the खान्स, मतलब कि खान्स लोगों का, द मलिक्स, फिर मलिकों का, and the अमीर्स, with the खान्स ranking the highest, मतलब कि ये जो खान, इसमें से भी जो खान्स है, the खान्स रैंकिंग, मतलब कि उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं द खान्स रैंकिंग द हाईएस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा जो हाई रैंकिंग में नोबेल्स में जिसका नाम आता है वो है खान लोगों का, मलिक लोगों का और अमीर लोगों का. उसमें ये तीन में से सबसे पहले जो आता है, मतलब कि जिसका नंबर आता है द हाईएस्ट, तो उसमें से जो ये लोग हैं वो खान है. विथ द खान्स रैंकिंग द हाईएस्ट. एंड देन मूव फॉरवर्ड. And then move forward. Many official, मतलब कि ये जो नोबेल्स और ऑफिशियल्स के बारे में हमने नोबेल्स के बारे में देखा और ऑफिशियल्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये जो नोबेल्स के बारे में वो आप नोट डाउन कर लिए अपने बुक में. ओके स्टूडेंट, एंड we will further move in the next paragraph in next video. Okay student, have you written this? Then your homework is write the short note about Firoz Shah Tughlaq and the short note about the Sultan in your book. Okay student, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye student.